السلام علیکم۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت غصہ ہیں اور میں یہاں صرف آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ اچھا تو پھر معافی کا تو بہترین طریقہ بس یہی ہے کہ اس طرح تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی نا، اسی طرح سے نکل جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے مجھے گلاب اور موتیے کے پھول بہت پسند ہیں۔ موہنی کو میں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا پتا ہے موہنی کو چمیلی کے پھول اور تمہیں میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے زارون نے چھوڑ دیا تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایسے پیسے کا محتاج ہو جاؤ گے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بیوی کتنے دن ساتھ دیتی ہے تمہارا۔ بس یہ جانے خدا میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ بولا ہوا مینار۔ ایک قدیم شہر کے کنارے ایک ٹوٹا ہوا مینار کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی چوٹی پر پہنچنے والا شخص اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز جان لیتا ہے، مگر برسوں سے کسی نے وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ گاؤں میں رہنے والا 17 سالہ ریحان ہمیشہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید قسمت صرف چند لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینار کی چوٹی تک ضرور جائے گا۔ صبح سویرے وہ سفر پر نکل پڑا۔ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کہیں گرد تھی، کہیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ کئی بار وہ پھسلا، مگر ہر بار اٹھ کر آگے بڑھتا رہا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی جادو، صرف ایک چھوٹا سا آئینہ اور ایک تختی رکھی تھی۔ تختی پر لکھا تھا، جس شخص کو تم اپنی کامیابی کا راز ڈھونڈ رہے تھے، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ریحان نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات اور قسمت کو سمجھتا رہا، جبکہ اصل طاقت اس کی اپنی محنت، صبر اور فیصلوں میں تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ روزانہ محنت کرتا، نئی چیزیں سیکھتا اور دوسروں کی مدد بھی کرتا۔ چند سال بعد وہ ایک کامیاب معمار بنا۔ اس نے اسی پرانے مینار کی مرمت کرائی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سبق کو یاد رکھ سکیں۔ جب لوگ اس سے پوچھتے، مینار پر آخر ملا کیا تھا، وہ مسکرا کر جواب دیتا، خزانہ نہیں، خود پر یقین ملا تھا۔ سبق: سب سے بڑی کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی قسمت کا انتظار چھوڑ کر اپنی محنت پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے۔ بولا ہوا مینار۔ ایک قدیم شہر کے کنارے ایک ٹوٹا ہوا مینار کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی چوٹی پر پہنچنے والا شخص اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز جان لیتا ہے، مگر برسوں سے کسی نے وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ گاؤں میں رہنے والا 17 سالہ ریحان ہمیشہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید قسمت صرف چند لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینار کی چوٹی تک ضرور جائے گا۔ صبح سویرے وہ سفر پر نکل پڑا۔ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کہیں گرد تھی، کہیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ کئی بار وہ پھسلا، مگر ہر بار اٹھ کر آگے بڑھتا رہا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی جادو، صرف ایک چھوٹا سا آئینہ اور ایک تختی رکھی تھی۔ تختی پر لکھا تھا، جس شخص کو تم اپنی کامیابی کا راز ڈھونڈ رہے تھے، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ ریحان نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار حالات اور قسمت کو سمجھتا رہا، جبکہ اصل طاقت اس کی اپنی محنت، صبر اور فیصلوں میں تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ وہ روزانہ محنت کرتا، نئی چیزیں سیکھتا اور دوسروں کی مدد بھی کرتا۔ چند سال بعد وہ ایک کامیاب معمار بنا۔ اس نے اسی پرانے مینار کی مرمت کرائی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سبق کو یاد رکھ سکیں۔ جب لوگ اس سے پوچھتے، مینار پر آخر ملا کیا تھا، وہ مسکرا کر جواب دیتا، خزانہ نہیں، خود پر یقین ملا تھا۔ سبق: سب سے بڑی کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی قسمت کا انتظار چھوڑ کر اپنی محنت پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے۔ بولا ہوا مینار۔ ایک قدیم شہر کے کنارے ایک ٹوٹا ہوا مینار کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی چوٹی پر پہنچنے والا شخص اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز جان لیتا ہے، مگر برسوں سے کسی نے وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ گاؤں میں رہنے والا 17 سالہ ریحان ہمیشہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید قسمت صرف چند لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مینار کی چوٹی تک ضرور جائے گا۔ صبح سویرے وہ سفر پر نکل پڑا۔ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کہیں گرد تھی، کہیں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔
कई बार वो फिसला मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा।
कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया।
वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू,
सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी।
तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते, मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था,
जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था, जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू, सिर्फ एक छोटा सा आईना और एक तख्ती रखी थी। तख्ती पर लिखा था,
जिस शख्स को तुम अपनी कामयाबी का राज ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रेहान ने आईने में खुद को देखा और खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात और किस्मत को समझता रहा, जबकि असल ताकत इसकी अपनी मेहनत, सब्र और फैसलों में थी। इस दिन के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वो रोज़ाना मेहनत करता, नई चीज़ें सीखता और दूसरों की मदद भी करता। चंद साल बाद वो एक कामयाब मेमार बना। इसने उसी पुराने मीनार की मरम्मत कराई ताकि आने वाली नस्लें भी इस सबक को याद रख सकें। जब लोग उससे पूछते मीनार पर आखिर मिला क्या था, वो मुस्कुरा कर जवाब देता, खजाना नहीं, खुद पर यकीन मिला था। सबक: सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन शुरू होती है जब इंसान अपनी किस्मत का इंतज़ार छोड़कर अपनी मेहनत पर यकीन करना सीख लेता है। भूला हुआ मीनार। एक कदीम शहर के किनारे एक टूटा हुआ मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि इसकी चोटी पर पहुंचने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज जान लेता है, मगर बरसों से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में रहने वाला 17 साला रेहान हमेशा दूसरों की कामयाबी देखकर सोचता था कि शायद किस्मत सिर्फ चंद लोगों का साथ देती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मीनार की चोटी तक ज़रूर जाएगा। सुबह सवेरे वो सफ़र पर निकल पड़ा। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, कहीं गर्द थी, कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। कई बार वो फिसला, मगर हर बार उठकर आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया। वहाँ ना कोई खजाना था, ना कोई जादू,